So today we are going to start your new topic, that is clampers. Right? Clampers means to clamp the input signal to a desired level. अच्छा mute कर लो. So in clampers also we are having two categories. One is positive clamper. सर हाँ जी. सर इसमें बस उल्टा होगा, इसमें ऐड करेंगे सिग्नल को, मतलब उसमें नहीं तो नहीं, कट अभी कर। देखो देखो जस्ट होल्ड करो. अभी 15 मिनट में आपको सारा आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो क्लैंपर्स में क्या है, टू टाइप से क्लैंपर्स है, पॉजिटिव क्लैंपर, वन इज नेगेटिव क्लैंपर. पॉजिटिव क्लैंपर का मतलब क्या है, इफ योर इनपुट गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, right, it's referred to as positive clamper. If its input is shifted towards the negative side, it refers as negative clamper, right? Now in this clamper we will take different components कौन सी use करते हैं, let me tell you that first. The components which are used for the clamper is, one is we required is capacitor, one we require a diode, number 3 we require any resistive element or resistor, right? So this is the mandatory for the one clamper, and sometimes we do use DC supply for additional shift, right? Now as we are using a capacitor here, so you all know capacitor job, right? That is, it first charge and then discharge. This you all are familiar, right? Now when it gets charged, it takes some time to charge, right? Similarly, it takes some time to discharge, and these time depends upon the time constant, which we call it as tau, and tau is generated as R into C. So it means whenever we are using a capacitor and whenever we are feeding some supply voltage, definitely my capacitor sometimes charge, sometimes discharge, depending upon the operation of a circuit. Now we're saying that whenever we're charging it or discharging it, it takes some time to charge or discharge, and that depends upon R and C value. Sir, Now, Hanji. sir, actually my internet was acting up, so sir मैं थोड़ा late join हुआ हूँ, तो like ज़्यादा miss तो नहीं कर दिया मैंने अभी. नहीं, ये फर्स्ट स्लाइड थी, बच्चे अब सेकंड शुरू कर रहा हूँ मैं. मैं Okay, sir. दोबारा रिपीट कर देता हूँ. देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया बच्चे क्लैंपर्स टॉपिक से. क्लैंपर्स मींस टू क्लैंप द इनपुट सिग्नल टू अ डिजायर्ड लेवल, राइट? सो जिस लेवल पे आप चाहते हो सिग्नल को ऊपर ले जाना, नीचे लेना, वी कैन डू दैट. And we have divided the clampers in two categories, positive clamper and negative clamper. Positive clamper का मतलब क्या है कि पूरे सिग्नल को उठा के मैं ऊपर पॉजिटिव पे ले गया, या नेगेटिव क्लैंपर तो नेगेटिव पे ले गया. Negative player. Yes. अब इस क्लैंपर्स के अंदर we are using these main components. कौन कौन से components? Number 1 capacitor, number 2 diode, number 3 resistor, and number 4 sometimes we do use the DC supply for additional shift. Now we all know that regarding the capacitor that its job is to charge to a particular level, and then later on it will discharge. So it takes certain time to charge as well as it takes certain time to discharge as well. It is not happening instantly, right? तो हम क्या कह रहे हैं कि its charging and discharging depends upon certain time constant, that is we written as tau is equal to R into C. Resistance to capacitance. Yes, resistor and capacitor that is used in the circuit. Yes. So depending upon the value of capacitor you have chosen, depending upon the value of resistor you have chosen, it takes that amount of time to charge or discharge. Now in this clamper circuit, हाँ जी. सर आर और सी, आर का मतलब रेजिस्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटेंस हो गया ना सर? एग्जैक्टली. अभी बनाऊंगा सर्किट में आपको. तो जो आपका ये डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, it is kept very high for the clampers. So what this means, whenever I am saying the discharging time constant is very high, it indicates that the capacitor will hold the voltage for more time, right? हम कह रहे हैं कि डिस्चार्ज होने के लिए वो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम साइकिल में, जब मान लो मैं एक वेवफॉर्म ड्रॉ करूं अपनी,
मान लो मेरी ये इनपुट सिग्नल है, राइट? इस इनपुट सिग्नल का मान लो मेरी ये जो टाइम पीरियड है, लेट्स सपोज t is 1 millisecond, suppose, right? So what I mean to say is that if the capacitor which I am using is having a very high discharging time constant, it means that discharging time constant may be greater than 5 millisecond for this particular case, right? So कहने का मतलब क्या हो गया कि जब एक हाफ में मीन्स हाफ, जब भी आप यूज करोगे सर्किट के अंदर, अभी हम बताएंगे आपको, एक हाफ में आपका कैपेसिटर चार्ज होता है, एक हाफ में कैपेसिटर को डिस्चार्ज होता है, राइट? सो जो आपका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसको हम डेलिबरेटली ज्यादा लेके चलते हैं, ताकि आपका जब अगला साइकिल आए तो उस टाइम पे कैपेसिटर आपका वही वैल्यू को होल्ड रखा हो, इट विल नॉट गो टू जीरो लेवल इंस्टेंटली, राइट? नाउ let's try to understand how the clamper circuit is, right, and how it works. So for the clamper circuit, let me draw the circuit. This is a first capacitor which is connected in series with my input, and then I am having a diode connected in parallel with my load. And let's say this is my output voltage V0. Here, let's say I am giving an input voltage across these 2 points. Let's say positive this side, negative this side, output also positive this side, negative this side. This is my R and this is my C. So जो time constant बात कर रहा था, R into C, this is this R into this C, right? Now suppose to this particular circuit I am feeding input, let's say a square wave, right? Let's say this is my V input, this is my time T, 0, T by 2, capital T. So here time frequency is 1 upon T, right? You all know that. So you are given a particular frequency of a signal, accordingly you can compute the time period for that also, right? Now for this particular circuit, to understand it, we have to consider the two set of the input voltages, that is for the positive half and for the negative half. So let's divide into two parts. Let's say case 1. Case 1 refers to that my input Vi is equal to plus V. That is for time t is equal to 0 to t by 2. For the first half, let's talk about this circuit. So for the first half, if I look into this diode direction, will it be forward biased or reverse biased? Forward by Forward biased. Forward bias. So it means whenever my diode is connecting, now in clampers, let me add one more thing in the previous slide. In clampers, if diode conducts, I again repeat, in clampers, if diode conducts, then capacitor will charge to the input voltage, right? And if diode is not conducting, means reverse bias हो गया आपका, right? Then capacitor will discharge. This thing you have to keep in mind, that in my clamper circuit, whenever my diode is in conduction, that is in forward bias, then my capacitor is getting charged, and whenever my diode is not conducting, then the capacitor will try to discharge. But we have kept intentionally the discharging time constant to be very, very high, so it won't allow the voltage to drop down. Right? Now, let's try to understand the circuit. So in this circuit, for the first positive half, my diode D is forward bias. Right? So it means if I redraw my circuit for this forward bias, it takes a short circuit here. Now you can straightway say that if it is acting a short circuit, the entire amount of current will flow through this only. It won't go to this. है ना? क्योंकि आपको पता ही है current follows the least resistance path. So whatever the input you are applying, here I am applying Vi is equal to plus V. So plus V means I can write it like this.
positive battery, because I am here giving a DC supply of V volts. I'm just talking about the case one when my input is plus V volts, right? So it means capacitor will start charging it. So when the capacitor starts charging, what will happen? Up to what value it can charge maximum? V. V. V by C. With positive side, negative side, Yes, sir. Yes, sir. right? Yes, So it sir. means for the positive half, what is the output I am getting? So plus V. So plus V. Plus Plus V. V. All agree with this? Yes, Yes, sir. sir. Yes. But it is wrong. Hmm? I am asking about the output voltage. Where is my output voltage? Just look into the Zero. circuit. Yeah, Sir, zero ही होगी माइनस भी output आएगी, तो। जीरो आएगी. yeah, this is the V naught ना. Yes. Zero. जब हम कह रहे हैं कि Zero. करंट जाएगा ही नहीं आउटपुट के ऊपर, because it is getting a short आएगी. circuit here, Okay, okay. output will be Zero. what? Zero. Zero होगी सर क्योंकि input Zero. voltage पे हो गया ना वो सारा. Exactly. That you have to understand. So what it means that in clamper circuit, for this type of circuit, if my diode is into conduction, I am getting 0 volt at the output because the entire amount of input is applied across the capacitor to charge. So capacitor Yes. gets fully charged to V volts. All agree with this case one? कोई doubt case Yes, one? sir. Okay, Yes, very sir. good. Now let's talk about the case two. Sir? हाँ जी बोलो. सर जीरो मतलब क्यों होगी बट सर ये नहीं मेरे को समझ में लगा सर. देखो आपने क्या बोला कि जब इनपुट आपने पॉजिटिव लगाई तो आपका डायोड क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया. अब Yes, sir. डायोड अगर शॉर्ट सर्किट है तो इस जंक्शन के ऊपर आओ, ध्यान से देखो. एक करंट यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा, जो इनपुट करंट आ रहा है. Yes, sir. अब जो लेट मी कॉल इट एज I1 I2, तो I2 कितना होगा? जीरो होगा. 0 होगा. अब I2 0 होगा तो I2 into R कितना होगा? वो तो सर जीरो ही होगा. बस. ओके ओके ठीक है सर. या सिंपल ऐसे मान लो कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स है, और अगर डायोड आपका आइडियल डायोड है, इट मींस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितनी है? 0. यस सर. दैट्स व्हाई इट्स 0. सर ये इन केस ऑफ डीसी वोल्टेज है ना. Yes, this is for this particular input. ओके सर. Now let's talk about the case 2. Case 2, that is when my input is minus V or T is from T by 2 to capital T. So if I talk about this particular case, for this my capacitor will be charged initially. Now my diode will be what? Acting as an open circuit Open because diode won't work. अब करंट सीधी जाएगी, अब V आएगा. माइनस V. हाँ. Yes. सोच के बोलो. V is equal to minus V लगाया मैंने यहाँ पर. It means माइनस V आएगा वही. यहाँ पर आ गया. माइनस वी माइनस वोल्टेज. V आएगा. क्या आएगी आउटपुट? माइनस V. माइनस वी. Minus V. All agree with this? यस Yes, सर. sir. It's wrong. हाँ, sorry. फिर हो गया. Plus V आएगा सर. Plus Why V. it is wrong? Let me explain. Plus V. नहीं. सोचो और कोई. Zero. Zero. No. फाइनाइट. No. Sir, माइनस V माइनस IR. एक बात बताओ कैपेसिटर मुझे. की भी है V. Minus 2V. एक बात बताओ, जो कैपेसिटर हमने पहले केस में चार्ज किया बेचारा, वो कहाँ जाएगी वोल्टेज? अरे वो भी तो लिख लेगी. हाँ ठीक है. तो कितनी आएगी सर, बताओ? क्या सर दोबारा बताना ही बोला? जो सर फिर तो case दुगनी one हो में- जाएगी. ये केस वन में क्या कहा है कि यहाँ पर वोल्टेज भी आ गई, तो ये भी कहाँ गई नेगेटिव हाफ में? कैपेसिटर तो होल्ड करेगा वोल्टेज को. एक्चुअली सर. हाँ जी बोलो. सर ये आपने जो लगाई है सर वोल्टेज सर ये तो डीसी वोल्टेज है ना सर हमारी. बिल्कुल, ये देखो इनपुट आपके सामने लगी हुई है यहाँ पर. नहीं We सर. having a constant voltage. This is a बट DC सर voltage. कैपेसिटर तो ब्लॉक कर देता है डीसी को सर. हैं? कैपेसिटर तो डीसी को ब्लॉक नहीं कर देता सर. बिल्कुल करता है ब्लॉक. तो फिर सर इनफाइनाइट नहीं होगी मतलब वो. सी ये जो आपकी वोल्टेज है, ये कौन सी, मैंने क्या लिखा है नीचे? फ्रीक्वेंसी लिखी है कुछ? नो सर. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो. यस सर लिखा हुआ है. तो डीसी वोल्टेज का क्या होता है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी वोल्टेज? infinite. Zero. इनफाइनाइट होती है. इनफाइनाइट होती है सर. X infinite. इनफाइनाइट. हाँ जी सर. सोच के बोलो. 100 hertz. सर इनफाइनाइट आएगी. फ्रीक्वेंसी कहाँ से पढ़ा आपने ये? सर पिछले Zero. Zero. की वैल्यू इनफाइनाइट Zero आएगी. for DC. ये हमेशा ध्यान रखना, तभी आप कहते हो कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी.
यस सर अगर आपको और क्लियर करना है, देखो कैपेसिटर क्या होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। हाँ जी यस सर। सर हम बोलते हैं 1 अपॉन जे 2 पाई एफ इंटू सी। अभी एफ अगर 0 होगा तो एक्सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो Yes, कैपेसिटी के केस में क्या है, आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होती है, फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है बच्चे डीसी की, ओके अरे सर। हाँ हाँ राइट। सर, ओके सर, अब ओके ये जो आपका सिग्नल है, इट इज नॉट अ डीसी सिग्नल, इट्स अ स्केयर वेव, ओके इट्स ओके नॉट कंटिन्यूअसली पॉजिटिव। गेटिंग द पॉइंट? तो फर्स्ट हाफ में ये प्लस वी है, नेक्स्ट हाफ में माइनस वी है। तो सिग्नल Okay. आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्ट कर रहा है, इट्स हैविंग सर्टेन फ्रीक्वेंसी, इट्स नॉट फ्रीक्वेंसी 0। ओके सर 2v आएगा क्या जो 2v यस। तो अब जो नेक्स्ट केस आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी वी वोल्ट्स था हमारे पास, पॉजिटिव दिस साइड नेगेटिव दिस साइड, राइट। तो अब यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो किससे करेगा, अप्लाई केवीएल लॉ। केवीएल लॉ लगाओ तो क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या, माइनस वी, यस सर। देन अगेन माइनस वी, माइनस वी नॉट माइनस 2v ओके तो ओके कितना आ गया, माइनस 2 टाइम्स वी। वी। So if I now try to plot the waveform of the output, तो output क्या आएगी मेरे पास, for the first case it is 0 till t by 2, then it goes to minus 2v. ओके So here it will be minus 2v, here it is क्लैम्प हो गया, 0 तो ये कौन सा क्लैम्पर बन गया हमारा, नेगेटिव क्लैम्प नेगेटिव क्लैम्पर। Yes, very good. So this is the example of negative clamper. बस सर नेगेटिव के केस में डबल हो जाएगी इसमें, है ना सर, वोल्ट। Negative केस में सब नेगेटिव Double हो पॉजिटिव दोनों में डबल होगी वो। ओके ओके वो भी देखते हैं, अभी देखते हैं, उसको भी देखते हैं। तो जिसको नहीं क्लियर हुआ, आई विल जस्ट अगेन एक्सप्लेन। हमारे पास दो केसेस थे बच्चे, हमने दो केसेस कौन से लिए हैं कि फॉर द फर्स्ट केस, दिस इज केस 1, माय इनपुट इज फ्रॉम 0 टू t by 2। तो हमने ये वाला पार्ट लिया इनपुट का। ओके सर। इस पार्ट में हमने कहा कि डायोड जोन से है वो क्या कर रहा है, एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो हमने ये शॉर्ट सर्किट दिखा दिया इसको, ठीक है। तो अब आपका कैपेसिटर जो से वो चार्ज हुआ बी वैल्यू पे, क्यों, क्योंकि जो सारा का सारा करंट है वो यहीं से फ्लो किया, आगे करंट गया ही नहीं। तो उस टाइम पे हमारी पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट क्या आ गई, 0 वोल्ट्स आ गई। नाउ व्हेन वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट केस, केस 2, जहां पर हमने इनपुट नेगेटिव दी, तो इनपुट नेगेटिव देने से क्या हुआ, आपका डायोड क्या हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया। तो डायोड यहाँ पर ओपन हो गया, इट मींस एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू द आउटपुट, इट मींस डेफिनेटली वी आर गेटिंग सर्टेन आउटपुट। अब आउटपुट कितनी आएगी, अप्लाई द केवीएल लॉ सिंपल। तो हमने क्या किया, केवीएल लगाया, इनपुट माइनस वी थी, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जाओ, केवल माइनस वी आ गया फिर ये Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव है तो माइनस वी नॉट हो गया। तो वी नॉट कितना आ गया, माइनस 2v। इट मींस वी Okay, नॉट माइनस 2v tv फॉर द इंटरवल t by 2 to capital T. So this is in case of negative. नेगेटिव। Is it clear to everyone? यस यस सर। सर Okay. Now let me give you one problem. अभी सॉल्व सर करो। हाँ जी बोलो। सर एक आपने वो साइड पे वो कैपेसिटर का नहीं समझाया था सर, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी एक्सी वाला सर, वो एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी सर, वो भी। ये हाँ जी सर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा सर साथ में। देखो एक्सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिएक्टेंस। वो कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी करके। यस सर। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। यस सर। अब एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हम कहते हैं कि जो आपका एफ इज इक्वल टू 0 होता है किसके लिए, डीसी के लिए। डीसी के लिए 0 है सर ये। तो अगर डीसी के लिए 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सी कितना होगा, इनफाइनाइट। यस सर। तभी हम कहते हैं द कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। व्हाई, बिकॉज एट द फॉर द डीसी सिग्नल माय कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट, राइट। बट हियर इन आवर केस वी आर नॉट गिविंग द डीसी इनपुट, ओके सर। राइट। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो डीसी है तो कैसे आउटपुट कैसे आ गई हमारे पास। सो वी आर सेइंग इट इज अ स्केयर वेव वेयर वी आर हैविंग अ पॉजिटिव वी आल्सो एंड नेगेटिव वी आल्सो विद इन अ साइकिल। So it's this signal is having not having a frequency 0, it is having definitely certain frequency, यस सर। right? सर इसमें कैपेसिटर एक साथ डिस्चार्ज कर देगा सारा? डिस्चार्ज करेगा ही नहीं ना, हम करने नहीं देंगे उसको। क्यों नहीं करने देंगे, क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में आपको बताया था ये बात कि we will keep the discharging time constant to be very high, that is of the order of 5 milliseconds। means अगर आपका tau is equal to rc निकालते हैं ना हम, तो ये rc जोन से ही हम कुछ सेट करते हैं। तो हमने जो सर्किट यूज किया, तो इसमें जो r यूज किया हमने, वो हायर वैल्यू का यूज करते हैं ताकि ज्यादा है हो ही ना पाए वो। नहीं सर, नेगेटिव क्लैम्पर वाले केस में कह रहा हूँ मैं। नेगेटिव Yes, sir. क्या कह रहे हैं दोबारा से। सर जो नेगेटिव वाला केस में था जिसमें -2v आया था ना, उसकी बात हाँ। कर रहा हूँ मैं।
हाँ, उसमें हम वही कह रहे हैं कि हमने इसको डिस्चार्ज होने के लिए मान लो इसको चाहिए 10 मिली सेकेंड, सपोज करो हमने इसको 0.5 मिली सेकेंड के बाद ही उसको सिर्फ दिए, तो कितना डिस्चार्ज होगा बेचारा? तो वी आर अज्यूमिंग इट होल्ड्स द वैल्यू, नो डाउट 0.001 कुछ कम हो जाएगा। सर हाँ जी, सर ये ग्राफ कैसे बनाया आपने -2v? सर माइनस फिर इस हिसाब से तो सर ये ग्राफ ड्रॉप नहीं करना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए अगर हमने उसका इतना कम रखा हुआ है, मतलब आरसी टाइम फिर कांस्टेंट, सिर्फ तो -v आना चाहिए। हाँ। मैं दोबारा से समझो जरा एक चीज को, देखो सर हमने आप कह रहे कि हमने जो कैपेसिटर रखा है उसका टाइम कांस्टेंट हमने बहुत हाई कर रखा है, मतलब 0.5 सेकंड है, वो 10 मिली सेकंड पे वो होता है, डिस्चार्ज होता है। सर उस हिसाब से तो उसका कभी टाइम आएगा ही नहीं, तो कभी डिस्चार्ज नहीं करेगा, तो वो जो आपने नीचे को उसका करंट निकाल दिया है, वो तो कभी जाएगा ही नहीं ना, मतलब लाइक वो कांस्टेंट रहेगा फिर तो। कौन सा करंट दे रहे हो? ये वाला? नहीं सर, ये नीचे जो आपने ग्राफ बनाया है -2v ये के वाला? ऊपर। हम्म ये -2 नहीं जाएगा, आप ये कह रहे हो? नहीं, -2v जाएगा, लेकिन -2v से नीचे नहीं मतलब -2v से ये वापस जीरो की तरफ नहीं जाना चाहिए ना, फिर ये तो पूरा -2v कांस्टेंट रहना चाहिए। सी -2 भी कांस्टेंट कब तक रहेगा बच्चे? जब तक आपकी यहाँ इनपुट -v है। अगर ये इनपुट चेंज होगी vi से +v होगी तो क्या होगा बताओ मुझे? फिर Zero. हट सकता है, तो वही फिर ना, जीरो हो जाएगा। आपका बेसिकली क्या है बच्चे, जो इनपुट है ना ये, दिस इज अ पीरियोडिक इनपुट। अच्छा ठीक। तो ये अगले बार फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। अच्छा हाँ, तभी वो जीरो हाँ, की तरफ गया। हाँ ठीक है सर, क्लियर? तभी स्क्वायर वेव फॉर्म बन रही है ना, इसी की वजह यस से। यस यस यस। सर ये एक बार -2v वाला फिर से बता दो। हाँ, -2 वाला कैसे आया ये पूछ रहे हो? सर ये गैप क्यों छोड़ा बीच में, ये नहीं समझ आया। कहाँ पर? 0 वोल्टेज आ गया ये वाला, हाँ जी, ये वाला? पॉजिटिव साइकिल में। ये यस सर। ये बच्चे 0 वोल्ट दिखाई है मैंने आपको, इसका मतलब देखा ध्यान से, ये केस 1 में हमने क्या निकाला देखो, V0 is 0 volt. It ठीक है means सर, ठीक है सर, ठीक है। for 0 to t/2 my output is what? 0 volts. तो मैंने वही दिखाया, देखो यहाँ पर 0 से t/2 के बीच में मेरी आउटपुट क्या है? 0 volts. आउटपुट सर मतलब पूरा ग्राफ v से नीचे शिफ्ट हो गया। हमारा ग्राफ वही जो इनपुट का था वो आउटपुट में v से नीचे शिफ्ट हो गया बस। yes. लेकिन इसमें एक चीज आपने ध्यान देनी है इंपॉर्टेंट, क्या कि जो आपकी इनपुट का वोल्टेज स्विंग है, इनपुट वोल्टेज स्विंग is always equal to output voltage swing. ये आप थंब रूल रख लो दिमाग में माइंड, कि जब भी आप वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे टू चेक वेदर योर वेवफॉर्म इज करेक्ट और रॉन्ग, जो आपका इनपुट का स्विंग आ रहा है और जो आपका आउटपुट का स्विंग आ रहा है वो दोनों मैच होना चाहिए। स्विंग का मतलब क्या है? जब हम यहाँ पीछे दिखाता हूं मैं आपको इनपुट के ऊपर, इनपुट कहां से कहां वेरी कर रही है? फ्रॉम +v टू -v। तो इट मींस अगर मैं पॉजिटिव पीक लेता हूं v पे है, माइनस नेगेटिव पीक, तो कितना आ गया? 2v आ गया मेरे पास। यस सर। So 2v is the input voltage swing. Now if I talk about the output, output का कहां से कहां वेरी करें? 0 to -2v. So it means 0 minus of -2v gives you what? 2v. So it means input का जो swing है और जो output का swing है वो मेरा दोनों मैच कर रहा है, और clampers always shows that the output voltage swing always matches with the input voltage. सर इसमें ये कैपेसिटर रिवर्स में डिस्चार्ज नहीं होएगा? डिस्चार्ज हम उसको करने नहीं दे रहे, हम उसका जो आरसी हमने रखा है टाइम कांस्टेंट को बहुत हाई रखा है, वी आर नॉट अलाउइंग इट टू डिस्चार्ज। ओके सर अगर -2v कैसे आया था? अगर सर अगर कैसे आया था? समझ नहीं आया, दोबारा से बोलो। सर मैं कह रहा था कि -2v कैसे आया था, मतलब नेगेटिव में हमने रिवर्स इनपुट के टाइम पे। -2v के लिए देखो बच्चे, हमारी इनपुट क्या है? -v। -v का मतलब मैं अगेन ड्रॉ हियर, -v का मतलब बैटरी नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है, यही मतलब है इसका। यस सर। अब आगे हमारा कैपेसिटर आ गया, पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर, ये भी v वोल्ट्स है। यस सर। डायोड तो ओपन ही है, इसको छोड़ दो। यस सर। यहाँ पर रजिस्टर आ गया, रजिस्टर के क्रॉस क्या आ रही है? v0 आउटपुट आ रही है, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। अब इसमें केवीएल लूप लगा दो, ठीक है सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या? -v, पॉजिटिव नेगेटिव -v, यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव -v0 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया इससे? v0 इज इक्वल टू -2v। ठीक है सर। गॉट इट? नाउ टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स ट्राई टू डू वन न्यूमेरिकल।
आपको सर समझ नहीं होगा। हाँ जी बोलो। सर ये हाफ साइकिल में चार्ज भी हो जाएगा पूरे जल्दी? बिल्कुल, क्यों होगा जल्दी, इसका भी आंसर है। अगर आपका शॉर्ट सर्किट है तो उसका मतलब क्या है, वो डायोड की रेजिस्टेंस तो बहुत स्मॉल होती है। आपको बताया था कि कितनी रेजिस्टेंस होती है डायोड की, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 ohms। यस सर। यस सर। तो 10 ohms अगर रेजिस्टेंस है उसकी शॉर्ट डिस्टेंस, तो R into that C will be very very small। यस सर। तो इसका टाउ बहुत स्मॉल है, टाउ स्मॉल है तो इंस्टेंट चार्ज होगा बहुत जल्दी वो। यस सर। Right? Now let's take one numerical to make it more understanding. Let's say now we're having the diode again, but now we are just adding one additional battery here. And let's say the load resistor is taken to be as 100 kilo ohm intentionally, right? And let's say C is taken as 1 microfarad. And let's say this battery V volts, which is of 5 volts. And this diode D is assumed to be ideal diode. Okay. And the input of the circuit, let me give you the input also. Input is plus 10 for the positive half and minus 20 for the negative half. Again it goes up, sorry, plus 10, minus 20 and so on. Okay. So this is my input voltage Vi, and let me refer here as, let's say T1 instant, T2, T3, T4, and let me mark this as the time period T, and this signal is having a frequency of 1000 Hz. अब निकालना क्या है आपने, you have to determine V naught for the input given. This is a question. तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपने करना क्या, पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका डायोड कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है ना। तो आप इस केस में देखो, आपको इनपुट के दो ही लेवल्स हैं। यस सर। राइट, अगेन जैसे आएगा तो दो केसेस मान लो, केस 1 केस 2। तो पहले केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में क्या है कि योर इनपुट इज प्लस 10 वोल्ट्स। तो अगर मैं यहाँ पर डायोड के, जब मैं दोबारा बनाऊं सर्किट यहाँ पर, कि यहाँ पर लगा मेरे पास प्लस 5 और यहाँ पर लगा प्लस 10, तो क्या डायोड काम करेगा? यस सर। हाँ? करेगा। करेगा? नो सर। सर नहीं करेगा। डायोड के पी पे वोल्टेज कम है देन एन वोल्टेज। ओके ओके। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोशिश क्या करो, पहला जो फर्स्ट हाफ है आपका T1 0 to T1 तक का, जिसमें वो कैपेसिटर आपका कुछ भी नहीं चार्ज नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि आपका डायोड आपका क्या है, रिवर्स बायस है, तो उसको कंसीडर मत करो। नाउ स्टार्ट फ्रॉम दोस साइकिल वेयर योर कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग, क्योंकि करंट तो वहीं से मिलेगा आपको, राइट। तो क्या करो, यू स्टार्ट विद द केस 2 first here where my input is minus 20 volts. So now if I give minus 20 volts on this side, then what will happen? तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा इसमें। Yes, डिस्चार्ज नहीं बचे, चार्ज होगा। हो जाएगा चार्ज। क्योंकि जब भी डायोड कंडक्ट करेगा तब आपका कैपेसिटर चार्ज होना है, ये याद रखो। आउटपुट तो सर -40 आई है इस केस में। अभी जल्दी नहीं करनी बिल्कुल भी। यहाँ देखो, for case 2 we're taking first case 2, Vi minus 20 है। Now Yes, you sir. tell if minus 20 is here, on this side I am having plus 5 volt of diode, this diode will act as a short circuit. ये हमें सबको पता है, right? So let me draw the circuit for this particular case. ये कैपेसिटर है, यहाँ पर diode short हो गया हमारा, और यहाँ पर plus 5 volt लगा हुआ है, और यहाँ पर मेरा 100 किलो ओम लगा हुआ है, और मेरी इनपुट क्या है, I'm talking about minus 20 volts. Right. Now you tell me what will be the output. सोच के बोला। तो 5 वोल्ट। 5 volts। -25 -25 वोल्ट। एक -25 आंसर है, एक 5 वोल्ट है, और कोई आंसर? -15 -15 और -15 -15
25 सर -15 और कोई -15 वो हो गया, माइनस भी हो गया, प्लस भी हो गया, -25 भी हो गया, +25 भी हो गया, 5 भी हो गया, और कोई बस बस कोई -5 वाला भी है शायद। लो -5 भी ले लेते हैं। नहीं सर, मैं नहीं हूँ -5 वाला। ओके, नो इश्यूज। अब देखो इसमें आउटपुट कैसे निकालनी है। आउटपुट वोल्टेज कहां पर आ रही है बच्चे? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है? अब यहाँ पर तो करंट कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि आपका सारा करंट तो इसके थ्रू चला गया, तो यहाँ पर तो अभी करंट है ही नहीं। यहाँ पर करंट कौन सा आएगा? ये जो इसमें से निकलेगा बैटरी में से। यस, क्योंकि जो आपकी इनपुट आ रही है वो तुम्हारा कैपेसिटर हो गया, तो कैपेसिटर तो फिर 5 वोल्ट ही आएगा फिर तो आउटपुट कितनी आएगी? ऑलवेज 5 वोल्ट। 5 सेंटर वोल्ट वाला है ये 5 ऑप्शन। वोल्ट है। तो V0 इज इक्वल टू +5 वोल्ट्स। कब? जब आपकी इनपुट क्या है? -20 वोल्ट। ये क्लियर है सबको? नहीं तो मैं दोबारा बताऊं? जी सर, क्लियर हो गया। दोबारा बताऊं? बता दो सर। आपने इनपुट -20 वोल्ट दी पहले। फॉर इनपुट -20 वोल्ट आई नो दैट माय डायोड इज इन कंडक्शन, फॉरवर्ड बायस, है ना? अब जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, इट मींस अब वोल्टेज मुझे निकालनी है अक्रॉस द कैपेसिटर, तो अलग इशू है। पहले निकालो वोल्टेज आउटपुट में कितनी आ रही है। आउटपुट कहां ले रहा हूं मैं? अक्रॉस दीस टू पॉइंट्स, है ना? अब इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस क्या लगा हुआ है? सिर्फ बैटरी लगी हुई है, और बैटरी किस तरह लगी? पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे। तो बैटरी कितनी वोल्ट्स लगी? 5 वोल्ट्स की। तो इट मींस आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ +5 वोल्ट्स एट द आउटपुट। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट what will be the voltage across this capacitor? -25 minus -25 -25 एक ऑप्शन। दूसरी -15 -15 तीसरी जाओ सर। सर -20 -20 और -20 लग रही है सर। -20 क्योंकि सर सेम रहेगी ना इनपुट वोल्टेज के अक्रॉस। सेम रहेगी। अच्छा, वेरी गुड। सो -20 को तो पहले हम क्रॉस कर देते हैं। रीजन ये है कि आप -20 बच्चे यहाँ लगा रहे हो। देखो यहाँ इसको वैसे इसको दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ एक मिनट बोर्ड पे। -20 का मतलब क्या है? नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, ऐसे है ना? ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर ये शॉर्ट है, और यहाँ पर 5 वोल्ट्स की बैटरी है। ये मेरा सर्किट है। अब लगाओ यहाँ पर केवीएल लूप। मान लो यहाँ पर VC वोल्टेज है, पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ मुझे VC कितनी आएगी? -20 पॉजिटिव नेगेटिव के -20, देन -5 -5 पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? -20 सारे पॉजिटिव नेगेटिव है। देखो कितना आ गया? 25 आएगी। 25 VC कितना आ गया? 25 -25 आ गई। गॉट इट? यस सर। इसमें किसी को डाउट कोई? नो सर। अब मेरा VC -25 वोल्टेज आ गई इसके क्रॉस। Whenever I give this -20. Now take the case, next case. जब आपकी इनपुट क्या है? VI is +10 था। अब +10 क्या हो गया? देखो यहाँ से इसका सर्किट बनाता हूँ। +10 ऐसे बनेगा, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, है ना? -25 है, तो इट मींस नेगेटिव यहाँ पर हो गया, पॉजिटिव यहाँ पर हो गया, है ना? तो यहाँ पर लिख दो 25 वोल्ट्स। यस सर। ये ओपन है और ये क्लोज है। ये केस हमारा, क्योंकि जब मैं इनपुट दे रहा हूँ 10 वोल्ट्स की, उस टाइम पे मेरा क्या हो रहा है? माय डायोड इज एक्टिंग एज ओपन सर्किट। तो मैं यहाँ नीचे वाली बैटरी नहीं बना रहा, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी बनाने की, ओपन ही होगा वो तो, है ना? तो -45 आएगी। -45 कैसे आ गया यार? 35 35 आएगी। 10 वोल्ट है ना वो, मैंने 20 से कर दिया था, 10 है वो। कितनी आएगी आउटपुट? शाबाश। सो -35 है सर। और कोई? इसको +35 दिस इज करेक्ट वन। ध्यान से देखो। अब जब ये सर्किट है, इसका लूप लगाओ ना। हमेशा जब भी दिक्कत आए आप लूप लगाया करो हमेशा। ओके सर। अब लूप लगाया तो क्या हुआ? नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो क्या होता है? +10। नेगेटिव से पॉजिटिव गया +25। पॉजिटिव से नेगेटिव गया -V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 क्या आ गया? 35
35 35 आ गया। So now if I try to plot the output कैसी बनेगी? अगर मैं पहला साइकिल छोड़ देता हूँ, मान लो 0 से T1 मैंने छोड़ दिया, 35 पे क्लैंप कर जाएगी। T1 से T2 के बीच में कितनी आएगी आउटपुट? If I follow the input, ये इनपुट है आपकी T1 से T2. What was the output? +5 Plus 5 volts, right? So let me draw +5 here. कि suppose ये मेरा यहाँ पर 5 volts है, so T1 से T2 के बीच में मेरे पास 5 volts आ गया. Now from T2 to T3, तो 35 है, 35 30 ऊपर जाएगा, 5 पे क्लैंप कर जाएगी ये। now you check what is the output voltage swing? 35 volts minus 5 volts. बस 30 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 30 volts. 30 वोल्ट। And if I go back to the input is what? 10 minus of minus 20. 30 30 वोल्ट है। क्लियर हुआ को नहीं हुआ? यस सर। अगर सर क्लियर इनपुट हो वाला गया, बताइए। हाँ बोलो कौन सा? इनपुट वाला केस कह रहा था सर, ये इनपुट पे आप जब गए हो तो ये फिर? कैसे सर? देखो 10 माइनस इनपुट की 20 पॉजिटिव कर दिया कितनी भाई। है, प्लस पॉजिटिव 10 पे आ रही है, नेगेटिव कितनी आ रही है, माइनस 20 पे आ रही है ना? तो पॉजिटिव माइनस ऑफ इनपुट पीक, तो 10 माइनस ऑफ माइनस 20 कितना आ गया? 30 वोल्ट। हमने ये देखना है बेसिकली कि इनपुट की पीक टू पीक कितनी आ रही है ओके और आउटपुट की पीक टू पीक कितने में आ रही है, दैट इज वोल्टेज। ठीक है सर। अब ये क्लियर हो गया तो इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे हम विद अ प्रैक्टिकल डायोड। सोच समझ के बताना, आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। फॉर द सेम प्रॉब्लम नाउ आई एम कंसीडरिंग इट टू बी अ प्रैक्टिकल डायोड। सर इसमें से -0.3 वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल डायोड है ना। सर सिलिकॉन डायोड तो बता दो कौन सा सर? सिलिकॉन डायोड तो बताने दे सर को भाई। बताने दे नहीं रहे आप। ठीक है, तो टेक इट एज 0.7। यस सर। अब मुझे बताओ कि जस्ट प्लॉट ऑन योर नोटबुक्स द वेवफॉर्म एंड देन आई वांट टू सी योर वेवफॉर्म्स। एवरीबॉडी ट्राई। पहले वाले में सिर्फ 4.3 लग जाएगी शायद। लग जाएगी नहीं, लगा के दिखाओ। लग तो बहुत कुछ जाएगा। सर डायोड कौन सा लिया हमने, सिलिकॉन जर्मेनियम? सिलिकॉन लिखा हुआ देखो ऊपर, सिलिकॉन डायोड 0.7 ड्रॉप। अरे ठीक है। जिसका हो जाए जस्ट शो मी द आंसर। In the meanwhile, I am drawing other circuits. एक्सक्यूज मी सर, पहले वाला ग्राफ दिखाना जरा। सर्किट दिखाइयो। ये देखो, ये सर्किट है आपका, ठीक है, और ये इनपुट +10 से -20 जा रही है। सर जो फाइनल ग्राफ बना रहे थे आप वो वाला। आउटपुट, ये आउटपुट है देखो। ठीक है सर, थैंक यू। जिसका हो जाए जस्ट ओपन योर वीडियो एंड शो इट टू मी। सर यस सर, वो आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लिंक पे ज्वाइन करने के लिए। 4th ईयर में ही डाइवर्ट करी जा रहा था सीधा ही। ऐसा क्यों यार? सर पता नहीं सर, मैं कुछ नहीं हुआ भाई, तूने जल्दी ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं सर, मैं तो लेट ज्वाइन किया, फिर भी यही कर रहा था। तो जल्दी ज्वाइन क्या करो। तो मुझे लगा क्लास कैंसिल हो गई, तो एक ग्रुप में मैंने मैसेज किया, वो कहता क्लास चल रही है, तो उसने लिंक भेजा अभी 12:20 पे। ये लिंक आप कॉपी कर लो बच्चे, यही सेम लिंक रहेगा हमारे हर एक लेक्चर के लिए। तो वो तो सर प्लेसमेंट्स के बारे पूछ ही जाते, मैं कहा मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ। सीधा प्लेसमेंट दे दो मेरे को। डिग्री हाथों में है नहीं, सीधा ही दे दो। नो इश्यूज, नो इश्यूज। जो 20 भी हो गया बच्चे, यू जस्ट हैव अ लुक ऑन सब वो कर लूंगा वीडियो। हाँ जी, ठीक है, वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी लेक्चर के बाद। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, किसी का हुआ आंसर बताओ मुझे।
सर सेकंड वाले केस में डायोड अपना कैपेसिटर अपना डिस्चार्ज होगा ना सर? सेकंड वाले केस में जो अपने सेकंड डायग्राम बनाया है। आप बना के दिखाओगे मेरे को? Yes, sir. एग्जैक्टली सेम है सर्किट्स में, फर्क क्या है यार? सिर्फ डायोड को प्रैक्टिकल किया मैंने बस। नहीं सर, कंफर्म कर रहा था, मतलब इसमें क्योंकि डायोड तो कंडक्शन में नहीं है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज कर देगा ना सेकंड वाली डायग्राम। डेफिनेटली। सी जब भी डायोड कंडक्शन में है तो आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अगर डायोड कंडक्शन में नहीं है तो वो डिस्चार्ज कर रहा है। डिस्चार्ज तो होने दे रहे हम। यस सर। ठीक है, ये दिमाग में रखनी बात आपने। हाँ जी, किसका हो गया दिखाओ मुझे फटाफट। सर मेरा देखना सर, एक सेकंड, ये ऐसे ही बनेगा ना? दिखाओ दिखाओ सर एक सेकंड। सर मुझे मेरी वीडियो नहीं दिख रही सर। मेरा मेरा दिखाई दे रहा है? एंथ्रेक्स बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट पे करो और पास लेके आओ। व्हाट आर द वोल्टेज लेवल्स? सर 5.7 और 35.7। ओके, लेट मी नोट डाउन। 5.7 एंड 35.7। 35.7, ठीक है। और किसका आया? कपिल दिखा रहे हैं। कपिल बोलो क्या लेवल्स है आपके बच्चे? 4.3 एंड 34.3। कम थोड़ी ना होगी, वो तो प्लस होगी। ओके, और किसी का? तो मेरा भी सेकंड वाला आया है। 34.3 आ रहा है। यही आ रहे हैं सबके? यस सर। यस सर। Yes, sir. 4.3 and 34.3. सर। Anybody else getting any other values? 3 and 4.3 वाला ही आ रहा है मेरे में। हाँ सर ठीक है, वो 4.3 आएगा, मैंने ऐड कर दिया उसको, तो गलत किया सर। क्या सॉरी। किससे गलत हो गया? एंटी से गलत हो गया? हाँ मेरा गलत लग रहा है मुझे। बैकआउट कर दिया? हाँ। Right. It's 4.3 volt. Why it is so? Because देखो, जब आपका डायोड कनेक्शन में आएगा तो क्या होगा? Let me draw it separately. For the diode to be connection, तो जब यहाँ पर आपका डायोड किस तरह से लगा हो, तो पी ऊपर था या नीचे था, कैसे था? सर पी ऊपर था, जी ऐसे लगा था, पी ऊपर एंड नीचे था। ऐसे था, है ना? यस सर। और नीचे बैटरी लगी 5 वोल्ट की, ये 0.7 का, तो इन दोनों के पास कितनी वोल्टेज आ गई? तो 5 - 0.7। 5 - 0.7, तो इट इज 4.3 वोल्ट्स। ये सबको समझ वही में आ है, गया? मैंने गलती कर दी, मैंने प्लस कर दिया था। कोई बात नहीं, 4.3 आ गया। नाउ हाँ सर। इफ यू टॉक अबाउट द कैपेसिटर, किस पे चार्ज होगा वो? तो आपने इनपुट दी कितनी? 10 10 पे चार्ज हो रहा है? नहीं, -20 -20 पे। सो -20 आपने दिया, तो अब कैपेसिटर किस पे चार्ज होगा? -20 प्लस सॉरी 4.3 -0.7। VC will be 4.3 -24.3 -24.3। यस सर 34.3 पे होगा सर वो। -22.3। राइट, इट मींस अब जब आप पॉजिटिव इनपुट दोगे वो क्या है? +10। राइट, तो जब 10 दिया आपने तो क्या होगा? ऐसे होगी ना, आपके यहाँ 10 आ गया और ये -24 है, तो ये -24.3 की बैटरी कितना रिप्लेस हो गया? ये ओपन होगा यहाँ से, ये क्लोज हो गया, तो यहाँ पर लूप लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव V0। तो लूप लगाऊंगा तो क्या आएगा? 10 प्लस 24.3 माइनस V0 equals to 0. सो V0 कितना आ गया? 34.3। 34.3। क्लियर सबको ये बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके, इफ दिस थिंग इज क्लियर, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 सर्किट्स बनाए हैं अभी, जनरलाइज सर्किट्स। सर एक मिनट, ये नोट कर लो सर्किट्स। हाँ नोट करो, नोट करो। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना 1 मिनट। कौन सी वाली बच्चे, जो अभी क्वेश्चन किया है? ये वाली? यस सर। क्लियर है? कुछ पूछना है बताओ इसमें। नो सर क्लियर है। नो सर क्लियर है। ओके,
तो अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इन तीनों क्वेश्चन में इनपुट सेम है, प्लस v से माइनस v आपकी जा रही है, राइट। तो पहला वाला केस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यस सर। उसमें हमारे पास क्या आई थी आउटपुट, फर्स्ट में 0 और नीचे जा रही थी -2v तक, है ना। यस सर। दूसरे वाले केस में आ जाओ। दूसरे केस में क्या है, हमने लगाई बैटरी V1 वोल्ट की लगाई है, तो क्या आएगा आउटपुट वोल्टेज, क्या आएगी बताओ। जब ये कनेक्ट करेगा तो कितनी आउटपुट आएगी, बोलो सर एक सेकंड सर, ये VI V1 सर VI आएगी। V1 अरे भाई VI क्यों आएगी, V1 बच्चे। अच्छा V1 यस सर, V1 आएगी। पॉजिटिव में है तो आई विल ड्रॉ इट इन द पॉजिटिव हाफ। यस सर। टेल मी व्हाट विल द आउटपुट फॉर द नेक्स्ट हाफ, कहां तक जाएगी ये वैल्यू कितनी होगी सर ये V1 plus VI V1 प्लस VI VI -2v minus V1 -2v minus V1 क्लियर है plus V1 अरे दोबारा से समझा दो। देखो, जब आपका इनपुट का बच्चे पॉजिटिव हाफ आया, पॉजिटिव में क्या ये डायोड ऑन होगा, यस सर। कैपेसिटर चार्ज होगा। अब एक कैपेसिटर कितनी वैल्यू पे चार्ज होगा, अगर मैं डाउन VC, इट विल बी इनपुट वोल्टेज VI और V अदर V माइनस V1 है ना। यस सर। तो पॉजिटिव हाफ में मेरा कैपेसिटर चार्ज हुआ V माइनस V1 तक। अब जब नेगेटिव हाफ आएगा तो नेगेटिव हाफ में कितना हो जाएगा, इट विल बी -2v माइनस ऑफ V माइनस V1 माइनस V0 इक्वल टू 0। यस सर। तो V0 कितना आ गया बताओ, -2v प्लस V1 गॉट इट। यस सर। अब थर्ड केस देखो, बैटरी को उल्टा कर दिया, इसमें क्या आएगी आउटपुट वोल्टेज जब डायोड कनेक्ट करेगा, -V1 माइनस V। तो यहाँ पर आप -V1 बनाओगे। एंड व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस, -V1 व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, -V1 plus V1 माइनस V1 -2V। यस। ये कैसे आया, इसके लिए भी आपको दोबारा बता दूं, जब आप इनपुट दोगे बच्चे -V है ना, -V माइनस, अब कैपेसिटर किस में चार्ज होता है इस केस में V प्लस V1 के ऊपर, क्योंकि आप जब यहाँ पर पॉजिटिव आप करंट फ्लो किया ना, ऐसे देखो, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया V प्लस V1 के ऊपर। तो जब डिस्चार्ज होगा तो -V इनपुट में होगा, तो -V माइनस ऑफ V प्लस V1 माइनस V0 इज इक्वल टू 0। और V0 कितना आ गया आपके पास, -2V माइनस V1। तो ये जो अभी हमने तीनों सर्किट बताया आपको, ये तीनों कौन से थे क्लैम्पर्स से, ऑल वर नेगेटिव क्लैम्पर्स। सो नेक्स्ट टाइम आपको डिस्कस करूंगा मैं पॉजिटिव क्लैम्पर्स, ठीक है। यस सर। ओके सर। So try to solve some questions regarding this. Let me take your attendance. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो बोलो। अटेंडेंस नीचे से लेना। हाँ बोलो। सर आप किसी क्लास की लैब लेते हैं? हाँ जी लेता हूँ। उसमें ना एक डाउट था मुझे थर्ड एक्सपेरिमेंट में। अच्छा लैब का डाउट, लेकिन लैब में ले सर पाऊंगा। जो CR सर हाँ बोलो बोलो। सर जो CRO पे V पीक टू पीक शो होता है, अगर उससे VM निकालना है तो उसे बाई 2 करके आएगा ना VM। बिल्कुल। VM is basically V peak। सर हमें सारी वैल्यू जैसे एवरेज लोड वैल्यू और वो सारी कैलकुलेट करने के लिए VM चाहिए। तो जो हमें CRO आउटपुट देता है उसमें V पीक टू पीक शो होती है, तो उससे अगर हमें VM निकालना है तो V पीक टू पीक बाई 2 करेंगे ना। जो DSO होता है ना, DSO में यू कैन मेजर VRMS, V peak to peak, कुछ भी मेजर कर सकते हो आप। सर जो सर ने हमें कहा है कि आपको वीडियो से रीडिंग्स लेनी है, तो जो रीडिंग्स है उसमें तो V पीक टू पीक शो करे, तो हम वही VM ले सकते हैं पीक टू पीक या उसे डिवाइड बाय 2 करना है पहले। करोगे ना आप पीक टू पीक, आप खुद चेक कर लो वेवफॉर्म कितनी आ रही है उसकी पीक टू पीक में, उससे देख के पता लगेगा आपको। आपकी लैब में पीक कौन टू है पीक तो टीचर जितनी कौन है आएगी लैब में? उसको बाय, अगर हम आपके टीचर उसको अगर हम बाय 2 करते
सर क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। आपका टीचर कौन है लैब में बच्चे? सर मयंक सर, डॉक्टर मयंक अग्रवाल। उन्होंने बताया होगा आपको बच्चे, एक बार लैब में फिर पूछ लेना सर सर आप। बताया तो था बट थोड़ा सा डाउट हो रहा है अब। तो बस इसको मैं बाद में ले लेता हूँ, मैं अटेंडेंस दूं पहले, क्योंकि इस लिंक को और यूज करना किसी और ने ना, सो आई कैन यस टेक सर, इट ठीक थ्रू। ओके, इज इट विजिबल टू एवरीवन? नो सर। नो No, सर। sir. नो सर। नो सर। Okay, okay.